हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? मजे में हो ना? तो चलो सबसे पहले तो हम हमारी बुक निकालते हैं। निकाल ली है सबने? तो चलो ओपन करो और इसमें पेज नंबर 9 पर देखो क्या दिखाई देता है। जो हमारा तीसरा पाठ है, कुत्ते की वफादारी, दिखाई देता है ना सभी को? तो चलो हम देखिए हमारा पाठ कुत्ते की वफादारी हो एक कहानी है। तो हम सबसे पहले तो शीर्षक समझ लेते हैं। कुत्ते की वफादारी, कुत्ते तो आप सभी जानते हैं कुत्ते को। तो उसकी वफादारी, वफादारी का मतलब क्या होता है? तो वफादारी का मतलब होता है स्वामी भक्त। उसके लेखक है लल्लू भाई रबारी। तो इसके बारे में, लेखक के बारे में कोई परिचय हमें मिलता नहीं है। तो जो कहानी है कुत्ते की वफादारी, इसमें एक लाखा बंजारा और कुत्ते की बात बताई गई है। तो कहानी का सार है वह मैं सबसे पहले आपको बता दूं और बाद में हम कहानी पढ़ेंगे। तो आ कहानी में શું છે? એક લાખો છે, એ બંજારો, બંજારાની જાતિ છે, એક બંજારા જાતિ હોય તો એ બંજારો છે એ લાખોનો વેપાર કરે છે, એટલા માટે એને લાખો વણજારો કહેવામાં આવે છે। અને આ લાખાને લાખો રૂપિયાનો વેપાર છે અને એની પાસે ઘણા બધા પૈસા છે અને એક એની પાસે આ વફાદાર કૂતરો પણ છે। એ સ્વામી ભક્ત છે જે એના સ્વામીને દુખે દુખી અને સ્વામીના સુખે સુખી છે। તો આ વફાદાર કૂતરો એની પાસે છે। હવે એક દિવસ લાખો વેપાર કરતા કરતા એને વેપારમાં ખોટ જાય છે। હવે એની પાસે એક પૈસો પણ વધતો નથી। હવે એને પૈસા જોઈએ છીએ ફરીથી વેપાર કરવા માટે, પણ પૈસા પોતાની પાસે છે નહીં। હવે એક શેઠને ત્યાં એ પૈસા માંગવા જાય છે। શેઠ શું કહે છે કે પૈસા તો હું આપું, પણ એના બદલામાં તારે કંઈક ગીરવી રાખવો પડે તો હું પૈસા આપું, એમને પૈસા આપું નહીં। હવે ગીરવે રાખવા માટે તો લાખા પાસે કંઈ હતું નહીં। ગીરવે રાખવું એટલે ખબર છે ને શું થાય? ગીરવે રાખવું એટલે કંઈક લાખો છે એ કંઈક ત્યાં મૂકી આવે, કોઈ પણ વસ્તુ કે કંઈ પણ, તો એ ત્યાં મૂકી આવે અને શેઠ એને પૈસા આપે। હવે લાખા પાસે જ્યારે પૈસા થાય ત્યારે શેઠને આપવા જાય ત્યારે શેઠ જે વસ્તુ પાછી લાખાએ આપી હોય શેઠ એને પાછી આપી દે અને લાખો એના પૈસા આપી દે, ગીરવી રાખ્યું કહેવાય। તો હવે લાખા પાસે તો ગીરવે રાખવા માટે કાંઈ હતું જ નહીં, શું આપણે ગીરવે રાખે? હવે લાખાને એવું થાય છે કે જે મારો કૂતરો છે એ ગીરવે રાખવું તો થાય, બાકી તો બીજું મારી પાસે કંઈ છે નહીં। પણ શેઠે એવું જ કીધું કે કાંઈક તું ગીરવે રાખીશ તો હું તને પૈસા આપીશ, બાકી પૈસા આપું નહીં। તારી પાસે કૂતરો છે એ અહીંયા મૂકી જા અને તારી પાસે જ્યારે પૈસા થાય ત્યારે તું દઈ જાજે અને કૂતરો તારો પાછો લઈ જાજે। હવે લાખાને એ કૂતરાને ત્યાં મૂકવામાં દુઃખ તો બહુ જ થાય છે। શું કરવું? ખૂબ દુઃખ થાય છે। કૂતરાને પણ ત્યાં જવું ગમતું નથી। એના સ્વામીને એને લાખાને છોડી અને ત્યાં જવું ગમતું નથી, પણ શું છતાંય જવું પડે છે। હવે લાખો છે કૂતરાને ત્યાં મૂકી આવે છે શેઠને ત્યાં અને ત્યાંથી પૈસા એ લઈ આવે છે। હવે લાખો ફરીથી વેપાર કરે છે અને વેપાર કરતા કરતા લાખાને ઘણી બધા પૈસા ભેગા થઈ જાય છે। હવે એક દિવસ શેઠને ત્યાં એવો બનાવ બને છે કે શેઠને ત્યાં ચોરી થાય છે અને ચોરો છે એ ચોરી કરી અને માલ લઈ જતા હોય છે। હવે કૂતરો એની પાછળ થાય છે। હવે આ ચોર છે એ આગળ અને કૂતરો એની પાછળ, ચોર આગળ દોડ્યા જાય છે। હવે જંગલ આવે છે, ત્યાં જંગલમાં ચોર છે બધો માલ જે સામાન ચોરી કરી હતી એ બધું ત્યાં જંગલમાં દાટી દે છે અને આ કૂતરો છે બધું જોવે છે। હવે સવાર પડતાની સાથે જ કૂતરો છે એ શેઠને ધોતી પકડી અને ત્યાં જંગલમાં જ્યાં ચોરોએ માલ દાટ્યો હોય છે ત્યાં લઈ જાય અને પોતાના પગ વડે ત્યાંથી માટી ખોદે છે, એટલે જે બધો જ સામાન હતો એ પાછો નીકળે છે। હવે શેઠ છે એ બધો જ સામાન એને મળી જાય છે, એટલે શેઠ ખૂબ પ્રસન્ન છે, ખુશ છે આ કૂતરા પર, એટલે કૂતરાને પોતે છોડી મૂકે છે અને એક ચિઠ્ઠી ગળામાં લખીને મોકલે છે કે હું આ કૂતરાની વફાદારીથી પ્રસન્ન છું, ખુશ છું, એટલે હવે હું એને મુક્ત કરી દઉં છું। હવે તું તારા શેઠ પાસે, તારા માલિક પાસે જઈ શકે છે એવું આ શેઠ કહે છે। એટલે કૂતરો તો જાય છે અને આ બાજુ લાખાને વેપારમાં પાછો ઘણા બધા પૈસા ભેગા થઈ જાય એટલે શેઠના પૈસા એ પાછા દેવા માટે આવે છે। તો આ બાજુથી કૂતરો આવે છે, આ બાજુથી લાખો આવે છે।
હવે લાખો કૂતરો સામે આવતો જોવે છે અને એને એમ થાય છે કે આ કૂતરો છે એ શેઠને ત્યાંથી એમને ભાગી આવ્યો હોય છે, શેઠને ખબર નહીં હોય અને આ મારી પાસે ભાગી આવ્યો હશે, આવું કરાય નહીં. તો લાખા પાસે એક લાકડી હોય છે, લાકડીનો પ્રહાર છે કૂતરા પર કરે છે. જે ગળામાં ચીઠી છે એ નથી જોતો કે નથી વાંચતો, પણ કૂતરા પર એ લાકડીનો પ્રહાર કરે છે એટલે કૂતરો ત્યાં ને ત્યાં એનું મૃત્યુ થઈ જાય છે. અને પછી એ ગળામાં ચીઠી છે વાંચે છે ત્યારે ખબર પડે છે કે આ કૂતરો ચોરો જે માલ લઈ ગયા હતા એ શેઠનો માલ પાછો આપ્યો છે, એટલા માટે કૂતરાને મુક્ત કરી દીધો છે. પણ હવે શું થાય, કૂતરાને તો મારી નાખ્યું લાખાએ. અને પછી આ વફાદાર કૂતરાની સમાધિ એ રાધનપુર ના તળાવ કિનારે આ કૂતરાની સમાધિ આજે પણ છે, હાલની તકે પણ ત્યાં હજી એની સમાધિ છે. માણસોની સમાધિ તો હોય જ, પણ આજે આ કૂતરાની સમાધિ પણ તમને ત્યાં જોવા મળે છે. ઉત્તર ગુજરાતના પાટણ જિલ્લામાં રાધનપુર નામનું ગામ છે, ત્યાં એના તળાવના કિનારે આજે પણ આ કૂતરાની સમાધિ છે. તો ચાલો જોઈએ આપણે अपनी कहानी। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। यह कहानी में अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को बताई गई है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। कोई भी काम हम जल्दबाजी में करना नहीं चाहिए। जो यह लाखा ने जल्दबाजी में काम किया है और बाद में पछताने की नौबत आई है, इसलिए यह कहानी का सार यह ही है कि जल्दबाजी में कोई काम करना नहीं चाहिए, जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना नहीं चाहिए। सोच समझकर काम करना चाहिए, बाद में पछताने की नौबत नहीं आती है। जो ये लाखा ने यह जल्दबाजी में कुत्ते को मारा, इसलिए बाद में उसको पछताने की नौबत आ जाती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई गई है और यह कहानी के माध्यम से कुत्ते और लाखे की बात बताई गई है। तो उत्तर गुजरात के पाटण जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है, मैंने बताया था ना। उत्तर गुजरात के पाटण जिले में राधनपुर नाम के एक छोटे नगर है, उसके वहाँ एक तालाब है। क्या है? वहाँ एक तालाब है, तो जिसके तट पर कुत्ते की समाधि है। तालाब के तट पर कुत्ते की समाधि है। समाधि और वह भी कुत्ते की समाधि तो होती है, और कुत्ते की, यह जानकर आश्चर्य होगा ही। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली घटना है। तो इसके पीछे क्या है? तो हृदय को हिला देने वाली एक घटना है। तो जो वफादारी के गुण मनुष्य में तो दिखाई देता है, पर जानवर में भी दिखाई देता है। सिर्फ मनुष्य में ही नहीं है वफादारी का गुण, जानवर में भी वफादारी के गुण दिखाई देता है। तो यहाँ वफादारी के गुण जो हमें दिखाई देता है। तो चलो देखिए हमारी कहानी। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते हैं। पुराने जमाने में, पहलाना जमाना में सामान लई जाओ अने लई आओ एनु काम कोण करतु? जे वणजारा एक जाति छे, वणजारानी जाति, ए लोको करता। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गांव का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था। तो यह बंजारा है, वह ऊँट पर अपना जो गांव का सामान है वह शहर में ले जाता है और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले जाता था। और शहर के जो माल है, मिश्री, गुड़, मसाले आदि, जो मिश्री का मतलब क्या होता है? चीनी, शक्कर, આપણે જેને સાકર કહીએ છીએ તે, એ મિશ્રી, ગોળ, સાકર, ગોળ, કોઈ એવા મસાલા, એ બધા છે એ શહેરમાંથી પાછો એ ગામડામાં લઈ જાય છે। लाखों का व्यापार था उसका, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। उसके लाखों का व्यापार था, इसलिए लोग उसे क्या कहते हैं? लाखा बंजारा कहते हैं। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। क्या था? लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। वह व्यापारी है, इसलिए उसके पास पैसे तो बहुत है, और यह लाखा के पास जो कुत्ता है बहुत वफादार है। जो रात में
बंजारे की बंजारे की पड़ाव की रखवाली करता है। बंजारे के जो पड़ाव डाले हैं उसकी रखवाली यह कुत्ता करता है। अगर कोई चोर लुटेरे उसके पड़ाव के और आते देखकर कुत्ते उसको भोंक भोंक कर दूर भगा देते हैं। इतना वफादार कुत्ता था उसके पास, और उसकी वफादारी से यह लाखा बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया। मार खा जाना उसका वह एक मुहावरा है, मार खा जाना। विद्यार्थी मित्रों, जो मुहावरा तमने नोटबुक में लखवाना कीधा छे, हूँ जे बोर्ड पर लखू छू ए तमारे बोर्ड पर बुक में लखवाना छे। तो यह है मार खा जाना, वह एक मुहावरा है, उसका अर्थ है नुकसान होना। मार खा जाना, नुकसान हो जाना। मार खा गया और रुपयों की जरूरत आ पड़ी। एक दिवस लाखो वणजारो छे एने वेपार में खूब ज खोट जाए छे अने एने रुपयानी जरूर पड़े छे। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा, उसने अपनी बात बताई। तो राधनपुर के एक सेठ के पास वह गया और ये जो सारी बात हुई, जो बात घटना घटी, उसको वह बताते हैं। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? सेठ उसको कहते हैं कि रुपया तो तुम्हारी जरूरत है इसलिए मैं आपको देता हूँ, और इसके बदले में तुमको कुछ गिरवी रखना पड़ता है, तो तुम गिरवी क्या रखोगे? लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास फुट्टी कोड़ी भी नहीं है। फुट्टी कोड़ी न होना वह एक मुहावरा है, उसका अर्थ होता है फुट्टी कोड़ी न होना, बहुत गरीब होना, बहुत गरीब होना। इसलिए लाखा कहता है कि मेरे पास फुट्टी कोड़ी भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं आपको क्या दूंगा? मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है, मेरी जबान पर विश्वास रखें और मुझे रुपये दे दीजिए, मैं आपकी पूरी रकम शुद्ध समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। और वो लाखा कहता है कि मेरे पास एक फुट्टी कोड़ी भी नहीं है, 1 रुपये भी नहीं है, तो मैं आपको क्या दूंगा? और मेरी जबान पर विश्वास रखे, हूँ जे कहूँ छूं मारा बोल पर, मारा शब्दों पर तमे विश्वास राखो। मारी पाछे अत्यारे कांई 1 पैसो फूटी कोड़ी पण छे नहीं, अने आपकी बुरी रकम शुद्ध समय के शुद्ध का मतलब होता है ब्याज। मैं आपकी जो रकम है वह ब्याज के आपको चुका दूंगा, शुद्ध समय के 1 साल में ही चुका दूंगा। आपकी जो रकम है, आपके जो पैसे हैं, मैं चुका दूंगा। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। सेठ कहते हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है गिरवी रखने के लिए, कोई बात नहीं है, तुम्हारे पास जो कुत्ता है वह तुम मुझे दे दो। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। सेठ उसको कहते हैं कि तुम कुत्ते गिरवी रखो और जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में। कुत्ता वफादार है इसलिए बंजार को बहुत दुख होता है कुत्ते देने में, मगर कोई चारा नहीं था। रुपये लेकर वह चल गया, देना ही होगा, कोई चारा नहीं था, उसको कुत्ता देना ही पड़ता है। रुपये लेकर चल गया। जब कुत्ता उसको पास रखते हैं और सेठ के यहाँ रुपये लेकर लाखा चला जाता है। कुछ दिन बीते, एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। थोड़े दिन बीत गए और थोड़े दिन के बाद सेठ के यहाँ चोरी होती है। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। कुत्ते ने, ये चोर है, उसका पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9, 10, 11 हो गए। कुत्ता वहाँ भोग भोग कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल ले गए हैं। 9, 10, 11 होना वह भी एक मुहावरा है। भाग जाना, 9, 10, 11 होना, भाग जाना वह एक मुहावरा है। तो अब एक दिन सेठ के यहाँ चोरी होती है और कुत्ते उसका चोरों का पीछा करते हैं और सेठ को जो माल ले गया है कुत्ते, सेठ को यह सब बताता है।
सेठ तो हक्का बक्का ही रह गया, बताने लगा कि भौंक भौंक कर उसके पास बोलने के लिए भाषा तो नहीं है, इसलिए भौंक 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 कर वह सेठ को यह सब सारी जो बात होती है ये बताते हैं। और सेठ यह सुनकर सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। हक्का बक्का रह जाना वह भी एक मुहावरा है, चकित हो जाना। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सुबह होते ही यह कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा, इसलिए सेठ आगे और कुत्ता पीछे। सेठ के कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। ये सेठ को पता चल गया कि इस कुत्ते मुझे कुछ कह रहे हैं, इसलिए सेठ कुत्ते के पीछे जा रहे हैं। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। जंगल में जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था वहाँ जाकर कुत्ते अपने पैरों से माटी खोदने लगे। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। जब थोड़ा खोदते हैं तब सब सामान दिखाई देता है। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। सेठ अब बहुत प्रसन्न है, उसकी खुशी का कोई पार नहीं था। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगे। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी भागने लगे। अब इस मिट्टी खोदने से जो सेठ का सारा सामान निकलता है, इसलिए यह देखकर सेठ बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और कुत्ते पर वह उसका हाथ थपथपाते हैं और प्रसन्न होकर उसके गले में जो एक पट्टा है उसमें एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते को कहता है कि तुम जाओ तुम्हारे लाखा के पास, तुम्हें मैं मुक्त कर देता हूँ। और यह सुनकर कुत्ते भी बहुत प्रसन्न होते हैं। वह जल्दी अपने मालिक से मिलने के लिए जा रहा है। इसके बाद के जो पैराग्राफ है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।